starting with disruptive impulse control and conduct disorder. Getting straight to the point, we've done already. देखो सब हमारा ब्रॉडर फ्रेम में टॉपिक कौन सा चल रहा है? मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं. नाउ वी आर ऑन डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स. ठीक है, लेट्स गेट इनटू इट कि भाई ये है क्या. These disorders included under the category are oppositional defiant disorder, conduct disorder, and others. देखो, the multiple disorders under this category, एक आपके पास आ गया, इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है. हाँ, यहाँ से डिफरेंस का क्वेश्चन बनता है, बड़ा अच्छा बनता है. This disorder included under this category are oppositional defiant disorder, conduct disorder, and others. ये color I was thinking to change it and okay done. इसमें आपके पास आ गया oppositional defiant disorder, conduct disorder और ODD. Oppositional, of course, oppositional defiant disorder is ODD, conduct disorder and others, and there are multiple other things also here. चलो लेट्स गेट इनटू द कंटेक्स्ट, मिल जाएंगी, एक्सप्लेन कर देंगे. चलो लेट्स स्टार्ट विद ओडीडी. व्हाट इज ओडीडी? इट इज अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर. देखो, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, डिफाइंस बहुत ज़्यादा है, स्टबननेस बहुत ज़्यादा है, इनअप्रोप्रिएट स्टबननेस है, दे आर इरिटेबल, दे आर इरिटेटेबल, खुद भी इरिटेटेड रहते हैं, एंड दे समहाउ समवेयर दे वेरी स्टबन, एंड दिस इज एज इनअप्रोप्रिएट स्टबननेस. देखिए, यू आर 45 और आप अपनी मम्मी के पैरों में बैठ के मम्मी मुझे ये चाहिए 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 चाहिए, या फिर यू आर लाइक 12-13 year old and you still sit in front of sit in front of your house and cry for something that you want. That is an age inappropriate stubbornness. Irritable होते हैं, defiant होते हैं, disobedient होते हैं, बात नहीं मानते हैं, behave in a hostile manner, they are not nice to you, they are very hostile. जिन लोगों को ODD हुए, they not see themselves as angry, उनको लगता है कि वो गुस्सा नहीं है. देखो, they of course, I mean, they do not say कि I'm angry or oppositional or defiant. They do not even recognize the fact that they are being stubborn or angry or oppositional defiant. वो अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं सर्कमस्टेंसेस और डिमांड्स के हिसाब से. अगर आप उन्हें कहोगे आपने ऐसा क्यों किया, दिस इज रॉन्ग, देन दे विल कम आउट विद इट क्योंकि मुझे ये चाहिए था, सिचुएशन ऐसी थी, सर्कमस्टांस ऐसा था, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, दैट्स व्हाई आई डिड इट. So they justify it. They justify their actions with circumstances and demands. Does the symptoms of the disorders become entangled with the problematic interaction with others? दूसरों के साथ problematic interaction में they are indulged. The terms conduct disorder and antisocial behavior, देखो, अपोजिशनल डिफाइंस डिसऑर्डर में आपने क्या क्या देखा कि स्टबन है, डिफाइंड है, एज इनअप्रोप्रिएट स्टबननेस है, इरिटेबल है, डिसोबीडियंट है. कंडक्ट डिसऑर्डर और एंटी सोशल डिसऑर्डर में आपने क्या देखा कि एज इनअप्रोप्रिएट एक्शंस कर रहे हैं, एटीट्यूड्स ऐसे हैं जो फैमिली की एक्सपेक्टेशन और सोसाइटल नॉर्म के अगेंस्ट जा रहे हैं, पर्सनल और प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द अदर्स. द बिहेवियर, देखो, अब वो किसी और के घर में घुस के उनका शीशा तोड़ के आ गए. This is against the property right of somebody else. This is against the personal right of somebody else. Age inappropriate action. A 14-year-old is going around and breaking things. Attitude that violates family expectation. The person is going to the school and pulling up a fight every second day. The behavior typical of conduct disorder includes aggressive actions. Actions aggressive है, threaten कर रहे हैं, harm कर रहे हैं to the people or the animals. Non-aggressive conduct that causes property damage, more deceitfulness, they're deceitful, धोखाधड़ी जिसको आप कहते हो, theft and serious rule violations. Children show many different types of aggressive behavior such as verbal aggression. यहाँ पर क्वेश्चन बनकर आ गया था कि डिफरेंस क्या है बिटवीन वर्बल एग्रेशन, यहाँ पे आप आगे आओगे तो यू हैव दिस प्रोएक्टिव एग्रेशन, है ना. नहीं, क्वेश्चन था फिजिकल एग्रेशन और प्रोएक्टिव एग्रेशन के बीच में, बट अगेन देखो कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है. लुक एट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. मैंने आपको क्या बताया कि भैया अपोजिशनल मैंने आपको बताया कि देयर इज डिस्ट्रप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर. उसके अंदर आपके पास अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है और आपके पास कंडक्ट डिसऑर्डर है. आपने अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में देखा एज इनअप्रोप्रिएट स्टबर्ननेस है. आपने देखा कि भैया कंडक्ट डिसऑर्डर में क्या कर रहा है, एज इनअप्रोप्रिएट एक्शन है, एटीट्यूड्स हैं जो वॉलेट कर रहे हैं फैमिली के एक्सपेक्टेशंस को, सोसाइटल नॉर्म्स को. एग्रेसिव एक्शंस हैं जो कॉज कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं टू द पीपल एंड द people animals, and the actions are aggressive. बच्चा एग्रेशन शो कर रहा है, कैसे कैसे टाइप्स में. वर्बल एग्रेशन में क्या होगा, नेम कॉलिंग, स्वेरिंग, मतलब द पर्सन इज कर्सिंग, ही इज नेम कॉलिंग. फिजिकल एग्रेशन में क्या होगा, हिटिंग, फाइटिंग. हॉस्टाइल एग्रेशन में क्या होगा, डायरेक्टेड इन्फ्लिक्टिंग इंजरी टू अदर.
The action that he's doing are to injure somebody else, are directed or have a motive to injure somebody else. Proactive aggression, dominating and bullying others without provocation. किसी ने प्रोवोक नहीं किया आपको, आप डोमिनेट कर रहे हो, आप बुली कर रहे हो, दैट इज प्रोएक्टिव एग्रेशन. दिस वाज डिस्ट्रप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स. इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है, कंडक्ट डिसऑर्डर है, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन देम टू यू. And in the next video, I'm going to start feeding and eating disorders.